हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन का मतलब होता है व्हेन वन क्वांटिटी इज लिंक टू अनदर क्वांटिटी। जैसे 2 इट इज लिंक टू 4 बाय स्क्वायर, 3 linked to 1 by 3 by reciprocal. It is known as relation. Next one is Cartesian product. Let A equal to AB, B equal to 1, 2, 3, then Cartesian product A cross B, A1, A2, A3, B1, B2, B3. It is known as Cartesian product. Suppose it has two elements. It is known as cardinal number. And B has three elements. So number of elements in A cross B, it is 6. Similarly, if A has n elements, B m elements, तो A क्रॉस B में नंबर ऑफ एलिमेंट्स n क्रॉस m या nm। अगर A में n एलिमेंट्स हैं तो A क्रॉस A, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स n स्क्वायर। रिलेशन फ्रॉम सेट A टू सेट B। सपोज करिए A एंड B आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, ये दोनों टू नॉन एम्प्टी सेट है। देन a set R, ये कहलाएगा is a relation from A to B if R is the subset of A cross B। अगर A R के साथ रिलेटेड है B से तो इसका मतलब है A is related to B या is in relation to B। अगर नहीं है A is not related to B। अगर A में m एलिमेंट्स हैं, B में n एलिमेंट्स हैं, तो A क्रॉस B में mn एलिमेंट्स और नंबर ऑफ रिलेशंस 2 to the power mn। अगर A में m एलिमेंट्स हैं, A क्रॉस A, इसमें m स्क्वायर एलिमेंट्स, नंबर ऑफ रिलेशंस 2 to the power m square। Types of relations: empty or void or null relation. If no element of A is related to any element of A, that is if R equal to 5, तो ये कहलाएगा null relation। For example, A है 1, 2, 3, R है AB such that A plus B equal to 8। A के कोई भी दो एलिमेंट ले लीजिए
इनका सम कभी भी 8 नहीं होगा, इसलिए ये कहलाएगा नल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन, if each element of A is related to every element of A, that is if R equal to A cross A, तो इसको कहेंगे यूनिवर्सल रिलेशन। A है 1 2, A क्रॉस A 1 1 2 2 1 2 2 1। अगर इसमें R को डिफाइन किया जाए ए बी सच दैट ये सम 0 से बड़ा हो जाए, हर एक के केस में सम क्या है 0 से बड़ा है, इसलिए ये कहलाएगा यूनिवर्सल रिलेशन। Identity relation, if every element of A is related only to itself, that is if R equal to A such that A belongs to capital A, तो ये कहलाएगा आइडेंटिटी रिलेशन। A है 1 2, R है 1 1 2 2, तो ये कहलाएगा आइडेंटिटी रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन, अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव कोई रिलेशन अगर तीनों का तीनों होगा तो वो कहलाएगा इक्विवेलेंस रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव में A or A is related to A रहेगा। फॉर एग्जाम्पल one line is parallel to itself, two is divisible by 2, symmetric, A or B implies that B or A, तो ये कहलाएगा सिमेट्रिक। फॉर एग्जाम्पल first line is parallel to second, this implies that second is parallel to first। Triangle 1 is similar to triangle 2, this implies that triangle 2 is similar to triangle 1। Transitive, A is related to B, B is related to C, this implies that A is related to C। L is parallel to M, M is parallel to N, this implies that L is parallel to N। Triangle 1 is congruent to triangle 2, triangle 2 is congruent to triangle 3, this implies that triangle 1 is congruent to triangle 3। क्वेश्चन देखिएगा, n be the set of natural numbers and relation R or n be defined by R equal to xy such that xy belongs to n, x plus 4y equal to 10, determine whether relation is reflexive, symmetric and transitive। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव, x कॉमा x लिया तो x plus 4x equal to 10, this implies that x equal to 2। केवल 2 के केस में ये रिफ्लेक्सिव हो रहा है, अगर हम कोई और वैल्यू लें तो ये नहीं है, तो नॉट एप्लीकेबल फॉर अदर वैल्यूज। सिमेट्रिक, अगर हम 6 1 लेते हैं
तो 6 + 4 × 1 ये आ रहा है 10, लेकिन 1,6 के केस में 1 + 4 × 6 ये आ गया 25, नॉट 10, तो नॉट सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव, अगर इसमें लेना है एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, वाई जेड बिलोंग्स टू आर, बट एक्स जेड नॉट बिलोंग्स टू आर, लेकिन इसमें ट्रांजिटिव रूल को वायलेट नहीं कर रहा है क्योंकि दूसरी कंडीशन आगे फुलफिल नहीं हो रही है, इसलिए ये ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव as rule is not violated. क्वेश्चन देखिएगा, determine the relation R in the set of A of human beings in a city at a particular time defined by R equal to XY such that X is wife of Y is reflexive, symmetric and transitive. तो सबसे पहले आते हैं रिफ्लेक्सिव। X, X ये नॉट ट्रू, क्योंकि एक लेडी दूसरी लेडी की वाइफ नहीं हो सकती। वन लेडी कैन नॉट बी वाइफ ऑफ अदर लेडी, इसलिए नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक, let X is wife of Y, this does not imply that Y is wife of X, क्योंकि Y जेंटलमैन है, X लेडी है, तो Y यहां पर जेंटलमैन एक लेडी की वाइफ नहीं हो सकती। नॉट सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव, X Y ट्रू है। आगे ट्रांजिटिव की कंडीशन फुलफिल होने के लिए और रिलेशन चाहिए, लेकिन रिलेशन पूरा नहीं हो रहा है, इसलिए ये ट्रांजिटिव माना जाएगा। क्वेश्चन देखिएगा, शो दैट mod a minus b divisible by 5 is an equivalence relation where ab belongs to whole number। पहला है रिफ्लेक्सिव, let a belongs to whole number, तो mod a minus a 0 which is divisible by 5, इसलिए ये हो गया रिफ्लेक्सिव। दूसरा है सिमेट्रिक, let ab belongs to whole number, mod a minus b equal to 5k, क्योंकि ये 5 से डिविजिबल है इसलिए। mod b माइनस ए, माइनस कॉमन निकालिए, ये हो गया a माइनस बी 5k1, तो ये भी 5 से डिविजिबल हो गया, सिमेट्रिक। नेक्स्ट है ट्रांजिटिव, let ABC belongs to whole number, a greater than b greater than c, तो mod a minus b 5k1 k1 whole number, mod b minus c 5k2
K2 whole number. This implies that mod A minus C, इसको लिखिए A minus B plus B minus C, ये हो जाएगा mod A minus B plus mod B minus C, यानी 5 times K1 plus K2. ये भी डिविजिबल बाय 5 है, इसलिए ट्रांजिटिव. क्योंकि तीनों के तीनों रिलेशन सेटिस्फाई हो रहे हैं, इसलिए ये इक्विवेलेंस रिलेशन है. क्वेश्चन देखिएगा. लेट n बी द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स एंड r बी द रिलेशन ऑन n क्रॉस n डिफाइंड बाय ए बी आर सी डी इफ एंड ओनली इफ ए डी बी प्लस सी इक्वल टू बी सी इंटू ए प्लस डी फॉर ऑल ए बी सी डी बिलोंग्स टू n. शो दैट r इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन. पहले इस रिलेशन को थोड़ा सा ठीक कर लें. ए डी बी प्लस सी इक्वल टू बी सी ए प्लस डी. इसको इधर डिवाइड करिए, इसको इधर, तो ये आ जाएगा बी प्लस सी अपॉन बी सी इक्वल टू ए प्लस डी अपॉन ए डी. ये आ गया 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी, 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन डी. तो इस रिलेशन में 1 अपॉन सेकेंड प्लस 1 अपॉन थर्ड इक्वल टू 1 अपॉन फर्स्ट प्लस 1 अपॉन फोर्थ. तो रिफ्लेक्सिव देखिए, ए बी रिलेटेड टू ए बी, 1 अपॉन सेकेंड प्लस 1 अपॉन थर्ड इक्वल टू 1 अपॉन फर्स्ट प्लस 1 अपॉन फोर्थ. क्योंकि एडिशन कम्यूटेटिव होता है, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव है. ए बी रिलेटेड टू सी डी, ये आ जाएगा 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी, 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन डी. बी सी डी रिलेटेड टू ए बी, तो ये हो गया 1 अपॉन सेकेंड प्लस 1 अपॉन थर्ड इक्वल टू 1 अपॉन फर्स्ट प्लस 1 अपॉन फोर्थ. फर्स्ट और सेकेंड सेम आ रहे हैं, इसलिए सिमेट्रिक है. ट्रांजिटिव, ए बी रिलेटेड टू सी डी, वैल्यू आएगी 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी, 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन डी. इसी प्रकार से सी डी रिलेटेड टू ई एफ, 1 अपॉन डी प्लस 1 अपॉन ई इक्वल टू 1 अपॉन सी प्लस 1 अपॉन एफ. इन दोनों को ऐड कर दीजिए, तो ये इससे कट जाएगा, तो ये आ गया 1 अपॉन बी प्लस डी भी कट गया, 1 अपॉन ई इक्वल टू 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन एफ, जो कहलाएगा ए बी रिलेटेड टू ई एफ. इसलिए ये ट्रांजिटिव भी है. क्योंकि सारी की सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है, इसलिए ये इक्विवेलेंस रिलेशन है.